Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to Saflaner. ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ପିଲେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତମର ଇତିହାସ ବହିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭିଯାନ। ଏହି ପାଠଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। ତ ଏହାର ଅଲରେଡି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢି ଦେଇଛେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢିବା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନୂତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନୂତନ ଭାଷା ଓ ଲିପିର କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ସହିତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଲା। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ନୂତନ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୃଷ୍ଟି କଣ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ 700 ମସିହାରୁ ଧରିକିରି 1700 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଠାରେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଲେଖା ହେଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ହେଲା କି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରେ ଯୋଉ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ଯୋଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆସୁ ଆସୁ ମିନ୍ସ 700 800 ମସିହା ଆସୁ ଆସୁ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ହ୍ରାସ ଘଟିଲା। ମିନ୍ସ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏହି ଦୁଇ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯଦି ଲୋପ ପାଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ, ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବା ସହିତ ଭକ୍ତିବାଦ ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଭକ୍ତିବାଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ହେଲା। ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସହିତ ଏହି ଭକ୍ତିବାଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତ ଆମର ଯେମିତି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆସିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋପ ପାଇଲା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଭକ୍ତିବାଦର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏଇ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତ ସେଇ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରଙ୍କ ନାଁ ଯାକ ପଢିବା ଆଉ ସେମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା? ଯୋଉ ଆମର ଭାରତ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଯାକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏଇ ଭକ୍ତିବାଦ ଉପରେ, ତାହା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକା ସୀମିତ ହୋଇଥିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଯୋଉ ଆମର ବଡ ବଡ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତ ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଫଟୋ ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ ଥିଲା ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ସେ 788 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେରଳର କାଲାଡି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତବାଦକୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ନା? 788 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦରେ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ସମଗ୍ର ଜଗତ ବା ସାରା ଦୁନିଆ ମିଛ ଅଟେ ବା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସାରା ଦୁନିଆ ସାରା ଜଗତ ମିଛ ଅଟେ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପାଇପାରିବା ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ ସେ ଭାରତର ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ବହୁ ଧର୍ମପୀଠ ମାନେ ଆଉ ମଠ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ବହୁତ ଧର୍ମପୀଠ ଆଉ ମଠ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମନେ ରଖ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ନା? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହା ଆଙ୍କେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡାଉନ ପଡିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦିଆଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ 1001 ରୁ 1100 ମସିହା, ଏହାକୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଉ ଜଣେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ରାମାନୁଜ, ଯିଏକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ରାମାନୁଜ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରାମାନୁଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିଥ ପିଲାମାନେ, ରାମାନୁଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଣ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୋଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଦେଇଛି।
तो रामानुज कहते जे ईश्वर निकट में निजक संपूर्ण रूपे समर्पण करने से कहते आउ प्रेम आउ भक्ति द्वारा क्या द्वारा प्रेम द्वारा आउ भक्ति द्वारा ईश्वर मिल पारे कहते शंकराचार्य कौन कहते ना ज्ञान बल ईश्वर आम पाइपर आउ रामानुज कहते प्रेम भक्ति द्वारा आम ईश्वर पाइपर आउ रामानुज यहाँ भी कहते ज्ञान अपेक्षा भक्ति ईश्वर प्राप्तिर श्रेष्ठ माध्यम अटे। तो देख ये शंकराचार्य आउ रामानुज मतामत किंतु डिफरेंट होची। शंकराचार्य कहते ज्ञान द्वारा आम ईश्वर पाइपर किंतु रामानुज कहते भक्ति द्वारा आम ईश्वर पाइपर ज्ञान द्वारा नुहे। तो यहाँ हूँ कंट्राडिक्शन रोचे माने विपरीत मतवाद रोचे। तो ये प्रकार शंकराचार्य रामानुज मतवाद भिन्न थिला। मतरे रामानुज मतरे मनीष गोटे जाति अटे आउ मनीष मध्य उच्च नीचर स्थान ना मीन बर्तमान जो हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान किंबा उच्च जाति नीच जाति माने बड़ बड़ जातिर लोक छोट जाति लोक आम जो कहूचे मतरे से जगह सेमती किसी ना आउ तांकर एही जो बाणी गुड़िक बाणी मीन कथा गुड़िक लोक प्रभावित भी करुला। ओके आउ रामानुज जी शिष्य थे भितर बड़ शिष्य ना हूँ रामानंद। से रामानुज द्वारा प्रचारित भक्तिवाद को उत्तर भारत में प्रसार करते। ठीक अच्छे ना। तो रामानुज जहाँ कहते से कथा को रामानंद कौन कले ना उत्तर भारत को जाई सेठरे कथा गुड़ी को प्रचारित करते। आ से रामानुज आदर्श नीति नियम नीतिमय जीवन को लोक आगे उपस्थापना करते। ठीक अच्छे ना पिला माने देख शंकराचार्य पिला माने भारत में टोटाल 4टा बड़ बड़ मठ तैयारी करछन। कोड़े कोड़े प्रथम है पुरी गोवर्धन मठ, बद्रीनाथ रे ज्योतिर्मठ, द्वारिका रे शारदा मठ आउ कर्णाटकर श्रृंगेरम ठारे श्रृंगेरी मठ। तो मठ ना देख प्रथम है पुरी गोवर्धन मठ, बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ 2, द्वारिकार शारदा मठ 3, कर्णाटक श्रृंगेरी मठ 4। 4टा मठ शंकराचार्य द्वारा शंकराचार्य बेले 788 ख्रीष्टाब्द मसीहा पर 788 रु 810 800 के 814 815 मध्य एगुड़ी तैयारी। भक्तिवादर सन्थ माने जो शंकराचार्य रामानुज रामानंद एमान को ही सन्थ बोली कहुए। तो भक्तिवादर सन्थ माने मुख्यतः मन रख जो लेखा गुड़िक लेखा जाउथला ता मुख्यतः आंचलिक भाषा लेखा जाउथला। तो सन्थ माने आंचलिक भाषा रे भजन आउ प्रार्थना मान रचना करी ईश्वर को पूजा अर्चना करुले। जेहेतु आंचलिक भाषा रे लेखा जाउथला जहाँ द्वारा कौन होउथला ना साधारण लोक मते बुझी पारुथले। तो समाजर सबु श्रेणी लोक माने ए धर्म ग्रहण करि पारुथले जेहेतु लेखा गुड़ी आंचलिक भाषा रे लेखा जाउथला जहाँ द्वारा उभय दक्षिण और उत्तर भारत में भक्तिवादर प्रसार घटा लगिला। यह ब्राह्मण धर्मर पुनरुत्थान करिबारे ठीक अच्छे ना। ये देख लिखाई गोटे भक्ति द्राविड़ उपजिलाए रामानंद परगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। यार अर्थ हूँ भक्ति द्राविड़ द्राविड़ अर्थ हूँ पिला माने दक्षिण भारत। तो ये अर्थात कहवाक चाहूँगी भक्तिवाद मुख्यतः दक्षिण बोले दक्षिण भारत में जन्म है। को रामानंद रामानुज शिष्य रामानंद जे कि उत्तर भारत को आनिले। आ शेष जो कबीर ना शुणुथिबो तमे चारिडे प्रचार करिले। कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड यार अर्थ हूँ कबीर चारिडे प्रचार कर। यही समय अर्थ हूँ पे 700 मसीह जो 1700 मसीहा मध्य उत्तर भारत में मुख्यतः शैव आउ वैष्णव धर्मर माने वैष्णव धर्म को शैव धर्म को शैव बोले आम क्या कहवा ना जी मन रख पे शिव को जो उपासना करे शैव, जे विष्णु को पूजा करे वैष्णव, जेकोसी देवी शक्ति को उपासना करे पूजा करे शाक्त बोली कहुए। तो उत्तर भारत में मुख्यतः शैव आउ वैष्णव धर्मर लोक बेसी थिले। रामानुज समसामयिक रामानुज जो टाइम पीरियड थे रामानुज को टाइम पीरियड थे 1001 रु 1100 ये टाइम पीरियड हूँ रामानुज टाइम पीरियड। ये समय दक्षिण भारत में आउ जड़े धर्म संस्कारक थे ना हूँ निम्बार्क जे कि दक्षिण भारत जन्मग्रहण करते। आके कौन कले ना उत्तर भारत आसिले। उत्तर भारत जो मथुरा वृंदावन अच्छी से रही मथुरा आउ आके थे वैष्णव। तो से मथुरा देख पे तुम जो मथुरा वृंदावन जीव तो सेठारे मुख्यतः श्रीकृष्ण को समस्त उपासना करती। श्रीकृष्ण राधा एम उपासना करती। तो से वैष्णव थे। आउ कृष्ण बाल्यकाल राधा प्रति प्रेम कंस सहित युद्ध आदि घटना मान प्रचार करी से कृष्ण प्रति लोक मान आकर्षित करते। कृष्ण संपर्कित यही कहानी मान पद्य आकार गीत आकार से रचना करते। लेखा गुड़िक मंदिर में स्थान पाई।
ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସମଗ୍ର उत्तर भारत में जनप्रिय हो पारिଥିଲା। तो तुम मैंने पिला जब उत्तर भारत जीव सेठरे स्पेशल तुम श्रीकृष्ण और राधा विषय ही तुम अधिक देखा पाइब। यही समय पिला जब ओडिशा कथा कहबा ओडिशा रे मध्य ब्राह्मण धर्मर प्रसार होइतिला। यही समय रे जो 1100 टाइम पीरियड रे ओडिशा रे मुख्यतः जो सोमवंशी राजा माने शासन करथिले तांका भितर किछि जण शाक्त थिले देवी को पूजा करथिले, कि जण विष्णु को पूजा करथिले, कि जण शिव को मध्य पूजा करथिले। तो सोमवंशी शासक माने शाक्त वैष्णव और शैव धर्मर पृष्ठपोषकता थिले। सोमवंशी राजा पर आसिले गंगवंशी आसिले। तो गंगवंशी टाइम पीरियड रे पूरा जगन्नाथ मंदिर तैयारी कराला नहीं कि समय जगन्नाथ उपासना जनप्रिय हो पड़ता। आ जगन्नाथ सब धर्मर सम्मान बोली लोक मान गोटे विश्वास भी थिला। ठीक अच्छे ना पिला माने ओके। एबे देखिए पिला माने हमें नूतन भाषा और लिपिर जन्म ये जो 700 मसीह पिला माने 1700 मसीहा मध्य स्पेशली अष्टादश शताब्दी द्वादश शताब्दी कहुଛି। अष्टम शताब्दी आम के बुझा से 700 800 को अष्टम शताब्दी कहुए। द्वादश बेले 1200 ରୁ 1300 मीन से प्राय 700 ରୁ 1300 मसीहा है कि 700 ରୁ 1300 मसीहा यही टाइम पीरियड रे मन रख पिला माने भारतर अधिकांश भाषा सृष्टि होइछि। आमे जो ओडिया भाषा रे पिला माने कथाबार्ता होचे ए ओडिया भाषा मत ही 700 ରୁ 1300 पाखापाखि 900 1000 मसीहा टाइम पीरियड रे ही हमर ओडिया भाषा भी सृष्टि होइछि। जो गजनी राजा सुनथिबो भारत को आक्रमण करथिले गजनी तांको टाइम पीरियड रे ही हमर ओडिसा रे ओडिया भाषा रो सृष्टि होइछि बोली इतिहास हमहु कहथाय। ठीक अछि। एक तो पिला लिखा होला भाषा और लिखा होला लिपि। भाषा लिपि भितर कोन कोन पार्थक्य अछि देखो बोले एबे आमे पढुचे कोन ओडिया भाषा रे पढुचे आ ओडिया रे जाक लिखा हिचा नै जेमि अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी पर्यंत भारतर सांस्कृतिक इतिहास गौरवमय ये जो लेखा जाक हिची पिला माने एहाकु लिपि बोली आउ जो प्रकार आमे कथबार्ता होचे ओडिया रे ताकु भाषा बोली कुआ जाय। तो मन रख भाषार लिखित रूप को लिपि बोली कुआ जाय। आ गोटे मन रखितो जे पिला माने प्रत्येक भाषार लिपि नाही माने ओडिसा रे एमिति किछि भाषा भी अछि जहार लिपि नाही आ किछि भाषा लिपि अछि। ठीक अछि ना ओके। जेमिति आमे जदि किछि भाषा कहबा ओडिया तेलुगु मराठी गुजराती मालयालम कन्नड़ तमिल तेलुगु ये जाक सब भाषा आ एमानक लिपि भी अछि। लिपि अथा ताको आमे लिखित आकार मध्ये देखि पाउछे। ओके देखो तो अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी अर्थात 700 रु प्राय 1200-1300 मसीहा पर्यंत भारतर सांस्कृतिक इतिहास बहुत गौरवमय अटे। कहीं ना यही समय बहुत गुटे नुआ नुआ भाषा आ से भाषार लिपि मध्य सृष्टि हेबा सहित आंचलिक साहित्यर विकास घटिला। जेटा आम दक्षिण भारत कथा कहबा दक्षिण भारत मुख्यतः पिला माने मन रख केतरा भाषा थिला ए जो 700 1300 मसीहा मध्य दुईटी भाषा थिला। प्रथम थिला संस्कृत। संस्कृत तो बहु अतीत काल आरंभ होइतिला। दुई नंबर भाषाटा थिला पिला माने आंचलिक भाषा। ठीक अछि। तो दक्षिण भारत दुईटी भाषा मुख्यतः प्रसिद्ध थिला। प्रथम हला संस्कृत भाषा जहाँ समस्त व्यवहार करथिले। द्वितीय थिला आंचलिक भाषा और आंचलिक भाषाटा भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न रही। संस्कृत भाषा को मुख्यतः विद्यालय रे शिक्षक माने आउ छात्र माने व्यवहार करथिले। ता सहित जेतिकी धर्मानुष्ठान थिला मिनसे मंदिर थिला से गुडी मध्य संस्कृत भाषा को व्यवहार कराउतला। जेते आंचलिक भाषा कथा कहबा आंचलिक भाषा को मुख्यतः जो चोल साम्राज्य राजा माने थिले से माने व्यवहार करथिले। चोल राज्य मन रख दक्षिण भारत रे जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो राज्य अछि सेठरे चोल माने शासन करथिले। सेमानक टाइम पीरियड रे आंचलिक भाषार बड़ व्यवहार होइतिला। आउ सेमान मुख्यतः तमिल भाषा को आंचलिक भाषा रूपे व्यवहार करथिले। तमिल भाषा यही तमिल भाषा पिला माने बहुलांश रे संस्कृत भाषा द्वारा मत प्रभावित होइतिला। मन रख पिला माने जे भारत रे जेतिकी भाषा अछि प्रायतः समस्त भाषा यही संस्कृत भाषा रे ही सृष्टि। तो तमिल भाषा मत संस्कृत भाषा रे सृष्टि होइतिला। तमिल भाषा सहित लिपिर प्रणयन करा जाय। लिपि अर्थ कोन तमिल भाषा को जो लिखित रूप दिया गला तो लिपिर प्रणयन करा जाय ए भाषा रे बहु साहित्य सृष्टि करा। कम्बान होचन गोटे लेखक ना से कौन करथिले ना तमिल भाषा रे रामायण रचना करथिले। ता सहित से समय बहुत नाटक आउ बहुत गुटे कविता मत सृष्टि करथिले। एही समय रे आंध्र रे तेलुगु भाषा और तार लिपिर प्रचलन हला। धीरे धीरे तेलुगु भाषा रे मत रामायण आ महाभारत मत लिखा हला। नानाय होचन गोटे लेखक ना जहा द्वारा तेलुगु भाषा रे महाभारत लिखा गला। परवर्ती समय टीकाना बोली आउ जणे कवि जे कि यही महाभारत को सारा आंध्र रे लोकप्रिय कराई पारथिले। किंतु महाभारत को तेलुगु भाषा रे के लिखिचंती नानाय। सिन जदि आमे जिबा हमर कर्नाटक राज्य को जिबा तो जहा आग मैसूर बोली कहउतला सेठरे कन्नड़ भाषार सृष्टि होइतिला। लिंगायत गोष्ठीर केतेक सन्थ संस्कृत भाषा परिवर्ते कन्नड़ भाषा को व्यवहार करी बहुत रचना लिखिबाकू लागिले से 700 ରୁ 1300 मसीहा मध्य। ता सहित किछि पंपा पोन्ना आउ राजा कन्नड़ साहित्यर विख्यात स्रष्टा थिले। एही समय रे
अच्छा ए वर्जन आम दक्षिण भारत विषय पढ़ले ना कि तमिल भाषा हो कि तेलुगु हो कि कन्नड़ हो एवं उत्तर भारत को जीवा तो ये समय उत्तर भारत में बहु आंचलिक भाषा लिपि सृष्टि होता साधारण लोक मैंने मुख्यतः जो अपभ्रंश भाषा थिला सेथरु बहुत गुड भाषा सृष्टि होता व्यवहार करते जमीक पश्चिम भारत को जीवा सेठे मराठी जो बर्तमान महाराष्ट्र राज्य अच्छी जार भाषा मराठी अटे सृष्टि होता है 713 समस्या मध्य गुजरात को जीवा से गुजराती भाषा व्यवहार होता ओडिशा को आसवा तो ओडिया भाषा यही समय कि सृष्टि होता चर्चा गीतिका ये गोटे लेखाटा यही 713 समस्या मध्य लेखाई ठीक अच्छे पे बहुत बढ़िया एवं देखिए पे आम कला क्षेत्र में यही टाइम पीरियड मध्य बेले 700 रु 1700 मसीहा टाइम पीरियड रे कौन सब नूतन शैलीर प्रवर्तन होता 700 रु 1700 मसीहा मध्य ये देख पे गोटे चित्र दिगला यहाँ हूँ आम दक्षिण भारत जो आम तमिलनाडु राज्य अच्छी से तांजोर नामक गोटे जगह अच्छी से बृहदेश्वर मंदिर हूँ यहाँ बृहदेश्वर मंदिर ठीक अच्छे ना से समय से चोल मैंने शासन करते टाइम पीरियड रे ब्रोंज यहाँ हूँ गोटे मूर्ति यहाँ हूँ भुवनेश्वर थी आम मुक्तेश्वर मंदिर ए प्रकार कलाकृति थिला तो कला स्थापत्य क्षेत्र में नूतन शैलीर प्रवर्तन यही 700 रु 1700 मसीहा मध्य होता जब आम दक्षिण भारत कथा चिंता करिबा तबे दक्षिण भारत में मुख्यतः पत्थर को पिला माने काटी काटी भितर मंदिर तैयारी करते एटा गोटे थिला आ एही समय पिला माने पत्थर ऊपर पत्थर रखी स्वतंत्र भाव में मंदिर तैयारी करा होतला आ जो मंदिर गुडी को तैयारी होतला पिला माने सेथिरे मुख्यतः दुईटा कोठरी करा होतला गोटे हूँ उपासना कोठरी जो महापुर रही जहाँ पूजा अर्चना करा आउ गोटे कोठरी थिला प्रवेश कोठरी मीन्स एंट्री गेट ठीक अच्छे धीरे धीरे जमी समय बीती बीती गला मंदिर भितर ए दुटा कोठरी भितर आहरी बहुत गुड़े कोठरी तैयारी लगे सहित मंदिर चारिपटे प्राचीरी कि स्टार्टिंग में मन रखी तो मंदिर में केवल दुईटी कोठरी होता गोटे कोठरी उपासना कोठरी जो भगवान निजे रोते जो पूजा अर्चना कराला आउ गोटे एंट्री गेट कि धीरे धीरे मंदिर भितर आहरी अन्य कोठरी तैयारी कराला तार पाचेरी कराला कि स्टार्टिंग में पाचेरी निर्माण हो नाला मंदिर मध्य को जीवाई प्रवेश द्वार है जहाँ गोपुरम बोली कहता गोपुरम अर्थ कौन प्रवेश द्वार तापर मंदिर अगणा मध्य छोट छोट मंदिर तैयारी कराला जो विभिन्न प्रकार देवादेवी आ साधुसंत मान मूर्ति पूजा कराला आउ मुख्य जो मंदिर अच्छी जो महापुर हमें बड़ कराला यहाँ देखिपो यहाँ देख यहाँ गोटे सेक्शन अच्छी यहाँ गोटे सेक्शन अच्छी यहाँ गोटे सेक्शन अच्छी आ भितर यहाँ सब बड़ अच्छी मीन आ भितर ही मुख्य महापुर थे ये जगह सब एंट्री गेट बुझीगला ना लोक मैंने प्रवेश करने प्रवेश द्वार यहाँ सब अच्छी चोल मान द्वारा निर्मित मंदिर बहुत बड़ आ सुंदर और आकर्षण थिला जेमि हम तांजोर बृहदेश्वर मंदिर किंबा गंगईकोंडा चोलपुरम ठारे मंदिर गुड़िक यही चोल मानकर अक्षय कीर्ति अटे से मंदिर मूर्ति गुड़िक मुख्यतः पत्थर कि ब्रोंज मुख्य या होता आउ से समय चोल मान द्वारा जो ब्रोंज या मूर्ति पृथ्वी प्रसिद्ध थिला बोली कहीपर यही समय पे जो मध्य भारत था मध्य भारत में मुख्यतः चांदेल राजा मैंने शासन करते द्वारा खजुराहो मंदिर जो कि तार कारुकार्य पृथ्वी प्रसिद्ध अटे मन रख मध्य भारत में चांदेल राजा मैंने जो खजुराहो मंदिर तैयारी कर तार को व्यवहार कर जहाँ कि पृथ्वी प्रसिद्ध अटे देखा सेमती राजस्थान माउंट आबू दिलवारा जैन मंदिर जोटा कि मार्बल प्रसिद्ध अटे आशार भुवनेश्वर जो मुक्तेश्वर मंदिर अच्छी से आम 1111 मसीह मुक्तेश्वर मंदिर कि अनंत बासुदेव मंदिर पूर्व जगन्नाथ मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर यू टाइम पीरियड तैयारी जो कलिंग स्थापत्य को व्यवहार कर देखुच ना केते सुंदर भाव में आम भुवनेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर तैयारी कराई तेज जब भुवनेश्वर जीव तेज निहत रूपे मुक्तेश्वर मंदिर राजाराणी मंदिर अनंत बासुदेव मंदिर तू देख ठीक अच्छे पे तो ये प्रकार पे आम चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कले परवर्ती वीडियो में यार जो क्वेश्चन आंसर है डिस्कस करवा ठीक अच्छे तो पे क्लास टी किपरि लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर भल लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे चलो थैंक यू सो मच।